Hello students, I'm teaching you Python. This is for class 12. This is video number 3, chapter 5, data file handling. So in the previous video, you have learned how to write and read data in the form of string in a data file. Now in this one, we will learn working with binary files. So we have to write data in the form of binary file. So binary files will write data as it is without any change in the memory. Whatever the data is stored in the form of dictionary, in the form of string, in the form of integers, or in the form of tuples, or maybe nested list. So in any kind of information that is stored in the memory, as it is, you want to write in the hard disk, and you don't want to change anything. You don't want the operating system or the other system software change that data. So as it is, you want to write, and while reading also, you want the data without any change. So no implicit typecasting or conversions to take place in this binary file. So till now you have learned to write lines, strings, list on the file. And now dictionary, tuple, list, nested of list, or integer, float, etc. you can write. You don't want to change the structure of the data. You want to maintain. You want to write the data without any changes. Two type of that binary files are there. One is, so this is writing into the file is of two type. One is serialization. It is also called pickling. Is the process of converting Python object hierarchy into the byte stream so that it can be written onto the file. Pickling convert an object in byte stream in such a way that it can be reconstructed in original form while unpickling it. जब हम रीड करेंगे तो हम अनपिकल करेंगे. एट द टाइम ऑफ राइटिंग वी आर डूइंग पिकलिंग और serialization. At the time of reading we will unpickle the data and read it in the same object, same type of object that we have used at the time of writing. Okay, so inverse of the pickling, where a byte stream is converted into the object hierarchy. Unpickling process is the exact replica of the original object. Okay, so now Python provide pickle module to achieve this. There is a module that we have to import in our program to do this process. As Python document, the pickle module implement a fundamental but powerful algorithm for serializing and deserializing, means pickling and unpickling a Python object. Okay, object is a data type, you can say, or object is a container which contains some data, and you don't want to change the structure of that data. That's why you are using binary file. Okay, so let's see the example. First of all, import pickle. So pickle is a module that you have imported in your program. Then step by step you need to understand. While writing, you need to do dump. Dump is a function to write data in the file, in the binary file, and load is a function which is used to read data from the binary file. So two functions are used: writing data into the file and reading data from the file. Okay, so let's see the steps. How many steps are there? First of all, import the module, then open the binary file that is required in your program. Okay, mode is also reading or writing. Then process binary file by writing or reading object using pickle module. Okay, then once done, close the file. Process तो वही है जो हम text file में कर रहे थे. Same process will remain same. Only in place of reading and writing, we will use the function dump and load. Let's see. Create, open, close binary files. So binary files and text files, the only difference is mode. So while reading file, we use R mode in text file, and for binary file, RB. Only B is attached with R. So B is for binary. So here WB plus, W means writing, B means binary, and plus means reading, writing both. Here RB means reading with in binary file, reading from binary file. So these two formats are given. A binary file is opened in the same way. So open करते time हमें सिर्फ mode देना है. Mode देते हुए B साथ लगा देना है. B for binary, and rest of the modes will remain same. R, W, A, or R plus, W plus, A plus, and B is attached with it. So there are two similar functions,
डंप्स एंड लोड्स, अभी अभी हमने क्या देखा था, डंप एंड लोड। अब डंप्स एंड लोड्स भी दो फंक्शन है, ठीक है ना, क्या डिफरेंस है दोनों में, ऑफ पिकल मॉड्यूल बट डीसीरियलाइज और डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट्स इन स्ट्रिंग फॉर्म व्हाइल लोड एंड डंप serialize an object for an open binary file, but as per syllabus we shall do only load and dump। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग लोड और डंप ही करेंगे हम, लोड्स और डंप्स नहीं करेंगे, ठीक है। Like text file, a binary file will get created when opened in object। तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने क्या किया, एक फाइल को ओपन कर दिया और उसमें कोई भी मोड दे दिया हमने, w w plus a, एंड इफ यू वांट टू यूज ए बाइनरी फाइल देन wb plus और waw, एनी मोड यू कैन गिव। तो क्लोज कैसे करते हैं, फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, ठीक है ना, इन दिस वे यू कैन क्लोज द फाइल ऑल्सो। Let us now learn to work with pickle module to write and read data into the binary file। तो ये हमें समझना है, if you are opening a binary file in the read mode then the first file must exist, otherwise error will come, that you already understood, this there is no change in the type of file, but you want to read something, you must write it in try catch block, or if you don't want to use the try catch block then you can use with statement for this, because exception handling is must in this process। अगर आपको exception handling नहीं करनी है तो with की हेल्प से कर सकते हो, और अगर exception handling करनी है तो without with try except भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, राइटिंग ऑन टू ए बाइनरी फाइल। अब बाइनरी फाइल में डाटा लिखना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल पिकल डॉट डंप, हमने क्या करना पड़ेगा, पिकल डॉट डंप ऑब्जेक्ट टू बी रिटन इनटू द फाइल, ठीक है। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट दैट इज ओपनिंग ए फाइल, तो फाइल इस ऑब्जेक्ट में ओपन हुई है, इस ऑब्जेक्ट को हमें डाटा फाइल हैंडलिंग लिखना है। डंप इज ए फंक्शन ऑफ पिकल मॉड्यूल, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ डंप फंक्शन वी आर राइटिंग दिस ऑब्जेक्ट इनटू दिस फाइल, ओके। So, for example, pickle dot dump list one file one, तो फाइल वन क्या है, हमारी फाइल ऑब्जेक्ट है, और लिस्ट वन क्या है, हमारा डेटा है जो हमने लिखना है, और डंप क्या है, डंप इज ए मेथड ऑफ मॉड्यूल पिकल, ठीक है। इन द सेम वे यू मे राइट डिक्शनरी और टपल और एनी अदर पाइथन ऑब्जेक्ट। डंप फंक्शन की हेल्प से हम कोई भी पाइथन का डेटा टाइप, किसी तरह का भी डेटा टाइप हो, वो हम राइट कर सकते हैं। इट कैन बी लिस्ट, इट कैन बी डिक्शनरी, इट कैन बी टपल, इट कैन बी नेस्टेड टपल, इट कैन बी नेस्टेड लिस्ट, इट कैन बी फ्लोट, इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी इंटीजर। कोई भी डेटा टाइप हम डंप फंक्शन की हेल्प से लिख सकते हैं विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी implicit modification। For instance, to write a dictionary, namely student1 in the file, open the handle file2 and you may write pickle.dump object name and file name। तो इस तरह से हम, ये देखो ये एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको ध्यान से समझते हैं। write a program to binary file called emp.dat and write on to the employee detail of some employees available in the dictionary। हमने क्या करना है, employee.dat फाइल में डिक्शनरी की फॉर्म में कुछ एम्प्लॉइज का डाटा राइट करना है। देखते हैं, पहले तो डिक्शनरी बनाएंगे, इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल, ओके, इंपोर्ट कर लिया। employee1 is equal to, this is a dictionary, employee number, name, age, salary, again employee number, name, age, salary, employee number, name, age, salary। so how many dictionaries are there, 4 dictionaries are there। तो हमने 4 डिक्शनरीज बना ली जिसमें हमने डेटा डाल दिया। नाउ फाइल डॉट ओपन मीन्स emp file is equal to open emp.dat wp, this w for writing purpose and this b for binary file, okay। write on to the file pickle.dump employee object file name or file handle, then pickle.dump again pickle.dump again pickle। so 4 objects are written, employee1, employee2, employee3, employee4 in the file employee file,
And employee file, what is employee file? Employee file is referring to employee.dat, which is there in the hard disk. Print successfully written 4 डिक्शनरीज, तो अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो ये सब रिटर्न हो चुका होगा, देन फाइल डॉट क्लोज, फाइल क्लोज हो जाएगी। द अबव प्रोग्राम विल क्रिएट ए फाइल नेमली एम्प्लॉय डैट, इस नाम से फाइल बन जाएगी और उसको आप डबल क्लिक करके देख भी सकते हैं नोटपैड पे कि उसमें क्या लिखता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मशीन लैंग्वेज भी होगी, मिक्सचर सा होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ टेक्स्ट फाइल दैट यू कैन सी इन नोटपैड फाइल. It is a binary file, so some text portion is only text part is visible, the rest is machine language, maybe salary, maybe employee number, all these things are in some symbolic form, but name is in text form because notepad can show only text data, not the binary data. Okay, one more program is given, इस program को करते हैं हम. Write a program to get student data, roll number, name and marks from user and write onto the binary file. अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट का डाटा लिखना है हमने. हाउ मेनी स्टूडेंट्स, देखते हैं कितने हैं. द प्रोग्राम शुड बी एबल टू गेट डाटा फ्रॉम द यूजर एंड राइट ऑनटू द फाइल एज लॉन्ग एज स्टूडेंट. तो जितने मर्जी स्टूडेंट्स का डाटा हम लिख सकते हैं इसमें, जब तक हम यस करते रहेंगे तब तक वो न्यू डाटा एक्सेप्ट करता रहेगा, ठीक है. तो लेट्स सी द प्रोग्राम. इंपोर्ट पिकल to, it's a dictionary, blank dictionary, it is a blank dictionary. stu file is equal to open stu data. Stu.dat नाम की फाइल को हमने राइटिंग बाइनरी मोड में ओपन किया एंड फाइल ऑब्जेक्ट इज दिस, फाइल हैंडल इज stu file. Answer is a variable which is initially y. Y means yes. While answer is equal to yes, do this process. तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक हम आंसर में y देते रहेंगे. अगेन एंड अगेन, जितने स्टूडेंट्स हैं उतने टाइम हम yes आंसर करेंगे. रोल नंबर, इनपुट रोल नंबर, इनपुट नेम, इनपुट मार्क्स, थ्री थिंग्स आर इनपुट. stu रोल नंबर, stu नेम, stu मार्क्स इज इक्वल टू रोल नंबर, नेम, मार्क्स. ये क्या बन गया हमारा, ये डिक्शनरी बन गई, ठीक है. नहीं, डिक्शनरी में 3 वेरिएबल्स हुए हमारे. पिकल डॉट डंप stu, stu इज ए डिक्शनरी. stu डॉट फाइल, फाइल में हमने डिक्शनरी का एक आइटम लिख दिया हमने. मींस आइटम कंटेन्स a record. In one record, roll number, name and marks, 3 things are there. So one record is entered. Then answer is equal to input. Do you want to enter more record? I will press yes. तो yes करोगे तो this loop will again start from here. Do the same process again. एक और डेटा डंप हो जाएगा. डंप मींस पिकल डॉट डंप वन मोर रिकॉर्ड. देन इट विल अगेन आस्क इनपुट, यू वांट टू एंटर मोर डेटा. अगेन यू विल प्रेस यस. जैसे तुम यस प्रेस करते फिर दोबारा से यहीं पे चला जाता है. जब तक तुम वाई प्रेस करोगे ये जाएगा यहाँ. अगेन एंड अगेन लूप विल वर्क टिल यस. एंड इफ यू विल से नो, then what will happen, it will come out of the loop and to file dot close हो जाएगी. तो यहाँ एक आउटपुट भी दे रखे थे, तो ध्यान से. फर्स्ट टाइम यू हैव एंटर्ड रोल नंबर 11 सिया 83.5. डू यू वांट टू एंटर मोर? यस. अगेन यू हैव एंटर्ड 3 थिंग्स. डू यू वांट टू एंटर मोर? यस. देन अगेन यू हैव एंटर्ड 3 थिंग्स. देन यू हैव प्रेस नो. जैसे नो लिखोगे इट विल कम आउट ऑफ द लूप. सो दिस मच डेटा इज रिटन ऑन टू द फाइल. And the name of the file is, what is the name of the file? Name of the file is given here, stu.dat. Here it is. Okay, तो stu.dat में ये सब डेटा राइट हो चुका है. Pending record in a binary file. अब तक जो हमने अभी बाइनरी फाइल बनाई है उसमें अगर मुझे और रिकॉर्ड एंटर करने हो तो क्या होगा? So you can open the same file again and now you have to open the file in append mode. A for append and B for binary. Okay, append mode in binary. Same program is written again. कोई difference नहीं है. Same program. The only difference is now you are opening it in AB mode. सिर्फ मोड का डिफरेंस है. Rest the program will remain same. When you will open the file in AB mode, what will happen? Cursor will blink at the end. And whatever you will write, whatever you will dump in the file, it will automatically be added in the end of the file. तो ये वही प्रोग्राम दोबारा बनाया है, सिर्फ जो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं वो ये डिफरेंस है. नाउ इट इज ओपन इन append mode. More objects is
one more object is added into it. Okay, now reading from the data. अब हमने write तो कर लिया, means two things we have already learned, that how to write data in a binary file and how to append data in a binary file. तो appending और writing तो दोनों same ही हुआ. In both the cases we are writing data into the binary file. Now we want to read data from the binary file. It is called unpickling. Writing data is called pickling and reading data is called unpickling. Once you have written onto a file using pickle module dump function, as we did in the previous last program, you need to read from the file using load. अब हम load करेंगे. read से होता है, load से होता है, write से होता है, dump से होता है, ठीक है ना, in the pickle module. Okay, let's continue. The load function is used as per the syntax given below. Object name जिसमें हमें डाटा लोड करना है, pickle dot load and then file name जहां से डाटा हमें एक्सेप्ट करना है. This is the object of file object. This is the object, data object, variable और object. इसमें हमें डाटा सेव करना है और रीड कहां से करना है, इस फाइल में से रीड करना है, ठीक है. लोड इज अ फंक्शन टू रीड द डाटा फ्रॉम द फाइल एंड स्टोर इट इन द ऑब्जेक्ट. जैसे एन एम्प्लॉय इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ आउट. एफ आउट शुड बी ए फाइल हैंडल, फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, विच इज रेड एंड द डाटा विल बी स्टोर्ड इन एन एम्प्लॉय. The following program 5.11 does the same for you. It read an object written by the program. जो पिछले प्रोग्राम में हमने कर लिया था वो प्रोग्राम से रीड करके और उसे आपको शो कर रहे हैं, रीड कैसे कर रहे हैं. But before we do that, you move on to the program code. It is important to know that pickle.load function will work only in try and except block. अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करते हो तो एरर आ जाएगा. अब हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग तो अभी सीखी नहीं है, तो आप विद स्टेटमेंट लगा सकते हो. तो इसी ब्लॉक में, इसी बॉक्स में एक्सेप्शन हैंडलिंग सीख रहे हैं हम. अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हो तो पॉइंट नंबर 1 को अंडरस्टैंड करोगे, और विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग आप करते हो तो पॉइंट नंबर 2 में यूजिंग विद स्टेटमेंट से भी किया हुआ है. तो दोनों हम सीखेंगे. देखो, फर्स्ट वन इज यूज ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक. Thus you must write pickle.load within the try block and accept statement as just after the completion of try block. हमने क्या किया, एक try block बनाया, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, जैसे ही नेस्टेड स्टेटमेंट खत्म हुई एक एक्सेप्ट स्टेटमेंट, और एक्सेप्ट में भी कुछ स्टेटमेंट हो सकती है. सो व्हाट विल हैपन, योर load function must come inside the try block, and if some error is coming, then this except will handle that error. Okay, this is the internal structure of the exception handler of Python. Okay. In the try block, that is between the try and except keyword, you write the code that can generate an exception, and in the exception block below, under the exception keyword, you write what to do when accepted end of file, or maybe some other error is also coming, वो भी आ सकता है. तो सभी हैंडल कौन करेगा, except will handle all the errors. File handle is equal to open file name read mode. हमने open कर ली फाइल. See, this is try block. We have to load the data from data file to the object under try statement, and then accept end of file error file dot close. ओके, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा. इसमें करके दिखाते हैं. इसमें एग्जांपल दिया बहुत अच्छा, यूजिंग विद स्टेटमेंट. तो इसमें हमें ट्राई कैच नहीं लगाना पड़ता विद स्टेटमेंट से. द विद स्टेटमेंट इज अ कंपैक्ट स्टेटमेंट विच कंबाइन द opening of file and processing of file along with the inbuilt exception handler. एक्सेप्शन हैंडल हमने मैनुअल नहीं लगाया, हमने इनबिल्ट एक्सेप्शन हैंडल यूज कर लिया, which is helping us. Okay, the with statement will also close the file automatically.
as soon as the block is over, file is closed. तो हमें file dot close भी करने की जरूरत नहीं है. With statement is like this: with open file name mode as file handler or object. ठीक है, तो we can use load function under with. तो हमें file dot close करने की भी जरूरत नहीं है, it will be closed automatically. Notice that you need not mention any exception with the with statement. जरूरत नहीं है, implicitly वो अपने आप ही exception handle कर रहा है. It will close the file automatically. It will handle that file does not exist automatically. It will handle end of file has generated. तो सारा exception handling वाला काम with statement कर लेगा. ठीक है ना. In the program below we have used try except block and with statement. दोनों के लिए एक एक एग्जांपल दिया है, हम देखते हैं वन बाय वन. With a program to open the file emp.dat, read the object written in it and display it. तो अब हम क्या कर रहे हैं, employee.dat में जो हमने पिछले प्रोग्राम बनाए हैं उसमें कुछ डाटा लिखा था हमने. Now we are going to read that. Let's read it. Import pickle. Okay, then it is a empty dictionary. Next is emp file is equal to open employee.dat in read and binary mode. Okay, the file is open. This is object file handler you can say. Okay, read from the file. Try block. देखो ये try block आ गया, ये पूरा का पूरा try block है. While true, it is infinite loop. emp is equal to pickle.load. इस फाइल में से एक ऑब्जेक्ट emp में लोड हो जाएगा. Okay, print emp. Then do the same process again. Read, load and print. Then do the same again. Load and print. Then do the same again. So in this way it will read the complete file. कब तक read करता रहेगा, जब तक successful reading is going on. जैसे ही object end of file पे आ जाता है, then there will be nothing after the last object. तो एक error आएगा, that error is called end of file error. As soon as end of file error will come, the exception will take it to the except function, except statement. Except statement क्या हुआ, end of file error मतलब file dot close. सभी objects print हो जाएंगे, उसके बाद file close भी हो जाएगी. This will be the output of the program. 1 2 3 4. 4 objects are written. Now you have an idea of how to read and how to write in the binary file. Okay, now updation is very important. कि हमने कुछ ना कुछ सर्च किया और उसका स्पेलिंग, नेम का स्पेलिंग या एड्रेस चेंज करना है हमने, that we can change the data, we can update the data in a binary file. तो पहले सर्चिंग तो सीखें कि जो डाटा हमने चेंज करना है उसको सर्च करें. तो write the program to open file created and used in program 5.9 and 5.10 and display the student record stored in it. So let's display. Import pickle. This is blank dictionary. fin is equal to open the file in read and binary mode. Try. Print. File stu.dat store the following data. क्या डाटा स्टोर हो रहा है, while loop लगाया हमने एक infinite loop. stu.load. fin. Print stu. Again do the same process. तो while loop है, ये पूरी की पूरी फाइल प्रिंट हो जाएगी and at last exception will come. Exception will be end of file error. End of file error आएगा तो क्या होगा, फाइल क्लोज कर दी हमने. तो what will be the output? All the data will be displayed on this like this. पूरी की पूरी फाइल हमारी डिस्प्ले हो गई. Create a binary file namely myfile.info and write a string having 2 lines in it. ठीक है, देखो क्या करते हैं. Import pickle. String is equal to this is my first line, this is my second line. 2 lines are there in the string. With किया तो हमें try catch की जरूरत नहीं है. Try and accept जरूरत नहीं है अगर हम with कर रहे हैं तो. With open myfile.info in writing and binary mode as fh. Fh is a file header, file object. ठीक है. Pickle.dump किसको, string को, कहां पर, fh में. fh is a file object. उस फाइल ऑब्जेक्ट में हमने उस स्ट्रिंग को राइट कर दिया. तो माय फर्स्ट लाइन एंड माय सेकंड लाइन, ये दोनों लाइनें फाइल हैंडलिंग फाइल में चली गई. द अबव प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ए बाइनरी फाइल नेमली myfile.info
एंड दैट स्टोर द गिवन स्ट्रिंग। इस फाइल के अंदर क्या रिटर्न है, क्या गिवन है, दिस इज माय फर्स्ट लाइन, दिस इज माय सेकंड लाइन, ये इसमें है। यू कैन ओपन इट इन नोटपैड इफ यू वांट, बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग यू कैन सी इन नोटपैड। अगर स्ट्रिंग ना होती, बाइनरी होता, तो हमें नहीं दिखता नोटपैड में। अभी है ये बाइनरी फाइल, लेकिन हमने सारा टेक्स्ट ही लिखा है, कुछ इंटीजर, फ्लोट या कोई अदर डेटा टाइप्स नहीं लिखे। राइट ए प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम द फाइल माई इन्फो। अब हमने ऊपर वाले प्रोग्राम में राइट किया ना, अब हम उसी को रीड कर रहे हैं, ठीक है। और ओ लेटर से पहले के कंटेंट्स या बाद के कंटेंट्स डिस्प्ले करने होंगे। देखो, इंपोर्ट पिकल, st इज इक्वल टू, इट इज ब्लैंक स्ट्रिंग, विद का मतलब हमें ट्राई और एक्सेप्ट नहीं लगाना है, विद ओपन माई फाइल डॉट इन्फो रीड बाइनरी मोड एज fh, st इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड fh, तो स्ट्रिंग होगी ना। फर्स्ट इज इक्वल टू st डॉट स्प्लिट o, तो इसके अंदर तो कंप्लीट एक स्ट्रिंग आ गई, इसके अंदर o तक ही आया, सिर्फ o से पहले का और o के बाद का अलग अलग आ गया, ठीक है। प्रिंट लिस्ट 0, 0 से प्रिंट किया तो 0 से लेकर और o से पहले के जितने कंटेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो यहाँ प्रिंट हो गए। दिस इज माय फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड, SECO, o आना चाहिए था ना, o से आगे के सारे सेकंड, SECOND सेकंड, और लाइन ऐसे करके था जो भी, वो वेनिश हो गया, इसको हटा दिया। बिफोर o एवरीथिंग इज प्रिंटेड, ठीक है। तो अब हम सर्चिंग और सीख रहे हैं। इफ वी वांट टू अपडेट सम डाटा देन वी नीड टू सर्च इट फर्स्ट। हाउ टू सर्च दिस, सी, open a file in the read mode, then read the file content record by record, एक एक रिकॉर्ड करके हमने रीड किया। in every read statement look for the desired search key, if found process as desired, if not found read the next record, okay. Then if search key is not found in any of the record, then report that no record found. Suppose this is the file, object 1, object 2, object 3 or 4, 5, 6, many objects are written. First you read the first one, then second, then third, then fourth, one by one you are reading everything and you are checking कि फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो वही है जो आप सर्च कर रहे हो। मे बी बाय रोल नंबर यू आर सर्चिंग, मे बी बाय नेम यू आर सर्चिंग, तो यू विल चेक कि दिस इज द रोल नंबर यू आर सर्चिंग फॉर, मे बी नो, देन यू विल चेक फॉर नेक्स्ट, देन यू विल चेक फॉर नेक्स्ट, देन यू विल चेक फॉर नेक्स्ट, मे बी थर्ड और फोर्थ टाइम और मे बी 10th टाइम द ऑब्जेक्ट विल अपीयर। अगर अपीयर हो जाता है तो यू विल प्रिंट दैट दिस इज द डिजायर ऑब्जेक्ट, और अगर अपीयर ही नहीं होता, हम एंड फाइल पे पहुंच जाते हैं, देन यू कैन प्रिंट द लाइन दैट दिस रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन द फाइल, ओके। तो ऐसे करके हम सर्चिंग करेंगे। प्रोग्राम बनाया इसमें, फॉलोइंग प्रोग्राम इज जस्ट डूइंग द सेम, तो अभी हमने डिस्कस किया ना सर्चिंग, इट इज यूजिंग अ बुलियन वेरिएबल नेमली फाउंड, फाउंड और नॉट फाउंड, फाउंड इज अ ट्रू और फॉल्स, that is false initially and store true as soon as the search is successful। तो हम फाउंड में क्या सेव कर दिया, हमने फाउंड में false सेव कर दिया इनिशियली और सर्चिंग स्टार्ट कर दी। जैसे ही हमारी सर्च सक्सेसफुल होती है तो हम फाउंड में क्या लग देते हैं, we will store true in it, और by the end we will check if it is true then object found, otherwise object not found। देखो प्रोग्राम समझते हैं क्या है। Write a program to open file stu.dat and search for records with roll number 12 और 14। तो हमने पूरी फाइल में दो रोल नंबर सर्च करने हैं, 12 and 14। if found printed, otherwise say not found, okay। import pickle, this is the blank dictionary, found is initially false, fin.open, हम फाइल को ओपन कर रहे हैं इनपुट मोड में, मींस रीड मोड में। सर्च की इज इक्वल टू 12 एंड 14, रोल नंबर 12 और रोल नंबर 14 को सर्च करना ना, दिस इज सर्च की। रीड फ्रॉम द फाइल, अब रीडिंग ट्राई ब्लॉक में होती है तो हमने ट्राई ब्लॉक स्टार्ट किया। प्रिंट सर्चिंग द फाइल इन stu.dat, हाउ टू सर्च, व्हाइल लूप, stu इज इक्वल टू pickle डॉट लोड, इफ stu रोल नंबर इज इक्वल टू, या इन सर्च की, सर्च में क्या था, सर्च की में 12 और 14 रोल नंबर थे। if roll number is in this list, it means our search is successful, so print this 2 and found is equal to true।
Otherwise, do this process again for next record. Then do this process again for next record. कब तक चलता रहेगा ये रिकॉर्ड? जब तक हमारे पास डेटा हमारा हमारा जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, ठीक है ना? अगेन एंड अगेन वी हैव टू डू. जब एंड ऑफ फाइल आ जाएगा तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, वो एक्सेप्ट एरर कोड पे आ जाएगा. देन इफ फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, record not found, otherwise successful search, then file dot close. This is searching. It is very important. We will use searching while updating our file. Read a file stu.dat created in earlier program and display record having marks is greater than 81. सर्च चाहिए भी एक. पहले हम रोल नंबर वाइज सर्च कर रहे थे, रोल नंबर 12 और 14 को सर्च किया था. अब हम उनको सर्च कर रहे हैं जिनके मार्क्स 81 से अबव है. तो लेट्स सी द प्रोग्राम. Import pickle, stu is a dictionary, found is false, print searching in the file stu.dat. with, अब हमने ट्राई ब्लॉक नहीं लगाया, अब with लगा लिया. तो कहीं पर with लगा रहे हैं, कहीं ट्राई लगा रहे हैं, आपको दोनों समझ में आने चाहिए. with open stu.dat read binary as fin. stu is equal to pickle.load. load कर लिया हमने, means data is in stu now. If stu marks is greater than 81, then print, otherwise do not print. Print हुआ या नहीं हुआ, then it will search for the next object. It will again search for the next object. कब तक सर्च करता रहेगा? जब तक सारे ऑब्जेक्ट वन बाय वन ट्रैवर्स नहीं हो जाते. तो ट्रैवर्स होने के बाद जिनके मार्क्स 81 अबव हैं उन सब का डिस्प्ले हो जाएगा, बाकी किसी का डिस्प्ले नहीं होगा. ओके, सो इफ फाउंड false, then no record found, else record found successfully. अपडेटिंग ए बाइनरी फाइल. अब हमें सर्चिंग तो आ गई, सर्चिंग करने के बाद हमें अपडेट करना है. सपोज दिस इज अ फाइल and you are reading first object, then second object, then third object, then fourth object. You want to change any one object. अब मैंने कहा कि रोल नंबर जो 5 है उसका नेम जो है उसकी स्पेलिंग में गलती हो गई थी, तो चेंज दैट नेम. हाउ टू चेंज द नेम? पहले तो हमें सर्च करना पड़ेगा रोल नंबर 5. इट इज रोल नंबर 1, इट इज रोल नंबर 2, 3, 4. जब आप फिफ्थ ऑब्जेक्ट को रीड करोगे तो तुम्हारा कर्सर फिफ्थ ऑब्जेक्ट के एंड में आ जाएगा, और अगर आप राइट कर दोगे तो सिक्स्थ ऑब्जेक्ट ओवरराइट हो जाएगा, फिफ्थ नहीं होगा. तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम रीड कर रहे हैं तो हम कर्सर पोजीशन को एडिट करने से पहले पीछे लेके आए, या तो कर्सर को पीछे लेके आए, या रीड करते टाइम ही इस पोजीशन को नोट कर ले. व्हाट इज द एड्रेस, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कर्सर बिफोर रीडिंग, और रीड करने के बाद कर्सर को वापस उसी पोजीशन पे लाके राइट करना है हमने, सो दैट द डाटा शुड बी अपडेटेड, मिस्टेक्स शुड बी करेक्टेड. ओके, ऐसा करने के लिए देखो क्या किया है. लोकेट द रिकॉर्ड टू बी अपडेटेड. पहले तो लोकेट किया हमने, देन मेक चेंजेस इन द लोडेड. अब हमने जो मेमोरी में लोड कर लिया था उस ऑब्जेक्ट में तो चेंज कर लिया, अब उसे राइट करना है. राइट बैक ऑन टू द फाइल एट एग्जैक्ट लोकेशन. अब क्योंकि देखो रीड के टाइम पे वो लोकेशन से आगे निकल जाएगा कर्सर आपका, उसे पीछे लाना है. पीछे लाने के लिए हमारे पास कोई मेथड है, तो वो ये मेथड है कि हम रीड करने से पहले ही वो रिकॉर्ड कर लें. वी कैन सेव द एड्रेस बिफोर रीडिंग, और आफ्टर रीडिंग वी कैन change the location of the cursor as required. देखो एग्जांपल दिया है इसमें, बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया है. You can easily perform the first two steps, और तीसरे स्टेप के लिए मैंने आपको बताया कि कर्सर की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें. We should record cursor position. See, accessing and manipulating location of a pointer. मैंने आपको बताया ना कि पॉइंटर की लोकेशन को एक्सेस करने के लिए क्या मेथड है. tell is a function which is telling where is your cursor, and seek is a function which is changing the position of the cursor from one place to another place. बिगिनिंग से फिफ्थ लोकेशन पे जाना है, या लास्ट से सेकंड लोकेशन पे जाना है, या करंट लोकेशन से फिफ्थ लोकेशन पे जाना है. एनीवेयर यू कैन गो विद द हेल्प ऑफ सीक फंक्शन. एंड वेयर इज योर कर्सर दैट यू वांट टू चेक, तो उसके लिए हमारे पास टेल फंक्शन है, ठीक है ना. टेल फंक्शन विल टेल यू वेयर द पोजीशन ऑफ द कर्सर इज. ओके, देखो यहां पर एग्जांपल दिया है. fh is equal to open the file marks.txt in reading mode, then print initially file pointer is at the file dot
टेल क्या आएगा, 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे आप फाइल रीडिंग मोड में ओपन करते हो तो कर्सर कहाँ होता है, 0th लोकेशन पे होता है। देन प्रिंट रीड दिस फाइल, रीड कितने की हमने 3 बाइट्स रीड कर लिए, और 3 बाइट्स रीड करने के बाद अगर हमने डिस्प्ले किया तो अब नया जो कर्सर पोजीशन होगी वो एंड ऑफ 3 पे होगी, मतलब 3 बाइट्स यू हैव रेड, आफ्टर थर्ड बाइट इन द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ बाइट इट विल बी देयर। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखो पहले तो 0th लोकेशन पे था कर्सर, और 3 बाइट्स हमने रीड कर लिए तो फिर वो कहां पर पहुंच गया, थर्ड लोकेशन पे। ठीक है, तो कर्सर मूव करता है, हमें कर्सर को मूव करने के लिए सीक फंक्शन मिला। सीक फंक्शन इज हेल्पिंग अस टू मूव द कर्सर पोजीशन, एंड टेल फंक्शन इज हेल्पिंग अस टू नो वेयर इज द करंट लोकेशन ऑफ द कर्सर। ठीक है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग modified code। fh is equal to open marks.txt, रीड मोड में कर लिया हमने, ओपन कर ली फाइल, प्रिंट 3 बाइट्स प्रिंट कर दिए। ठीक है, प्रिंट करंट पोजीशन, अब करंट पोजीशन क्या होगी, 3 बाइट्स के बाद। ठीक है, और फिर 5 बाइट्स और रीड कर लिए, देखो ध्यान से, थर्ड से लेके फिफ्थ तक, मींस 4 5 6 7 8 तक चला गया, तो नाउ द न्यू लोकेशन विल बी एट 8th पोजीशन। ये हमें देगा 8th पोजीशन, ये हमें देगा थर्ड पोजीशन, क्योंकि कर्सर जैसे जैसे आप रीड कर रहे हो वैसे वैसे आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, ये देखो ये आउटपुट में दिया है थर्ड एंड फिफ्थ। ओके, सीक फंक्शन, सीक फंक्शन क्या करेगा, हमें हमारे कर्सर की पोजीशन चेंज करने में हेल्प करेगा, कि जहां हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू राइट द न्यू डेटा, मॉडिफाइड डेटा, कर्सर पोजीशन शुड गो देयर with the help of seek function। Seek function is helping us to change the position of the cursor। The seek function changes the position of the file pointer by placing file pointer at specific position। कैसे करेंगे देखो, ऑब्जेक्ट नेम डॉट सीक ऑफसेट मोड, तो देखो इसको सिंटेक्स की फॉर्म में भी दिया है। ऑफसेट क्या है, इज द नंबर स्पेसिफाइड एंड नंबर ऑफ बाइट्स, कितने बाइट्स हमने कितनी बाइट्स पे मूव करना है, 5th बाइट पे मूव करना है, 10th बाइट पे मूव करना है, तो वेयर यू वांट टू मूव, एंड मोड इज 0 1 and 2। 0 फॉर बिगिनिंग पोजीशन, 1 फॉर करंट पोजीशन, एंड 2 फॉर एंड पोजीशन। 2 कहां से, एंड पोजीशन से, तो हमने एक फाइल के एंड से 5th लोकेशन पे जाना है, या बिगिनिंग से 3rd लोकेशन पे जाना है, या करंट लोकेशन जहां पर अभी कर्सर है वहां से आगे या पीछे जाना है, तो उसके लिए हमें ऑफसेट मोड की जरूरत पड़ेगी। देन फाइल ऑब्जेक्ट, में फाइल ऑब्जेक्ट बताइए हमें, वी विल ओपन द फाइल विद द हेल्प ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। ये तो हम ओपन तो बहुत बार कर लिया, यू ऑलरेडी नो। सी fh.seek 30 क्या होगा, 30th कैरेक्टर पर वो जंप कर जाएगा, क्या, कर्सर जंप कर जाएगा। fh.seek 30, अब ये मोड दे दिया, बाय डिफॉल्ट मोड 0 था, हमने कुछ नहीं दिया था, अब यहां मोड दिया तो करंट लोकेशन हो गया, 30 पे तो वो ऑलरेडी है करंट लोकेशन मींस, अब वो क्या होगा, 30 और आगे चला जाएगा, मतलब 60th लोकेशन पे चला जाएगा, जहां एट प्रेजेंट होगा करंट लोकेशन पे होगा उससे 30 आगे चला जाएगा। fh.seek -30 फ्रॉम एंड टू मींस फ्रॉम एंड, तो एंड से -30 मींस नेगेटिव डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में वो 30 कैरेक्टर्स 30 बाइट्स आगे चला जाएगा। fh.seek 30 मतलब बिगिनिंग से 30th कैरेक्टर पे चला जाएगा। fh.seek -51 मींस करंट से -5 लेफ्ट साइड में पोजीशन पर चला जाएगा कर्सर। these all these are showing you how to move the cursor, you can move the cursor position। तो रीडिंग और राइटिंग के लिए हमें कर्सर को मूव करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, इफ वी विल लर्न हाउ टू मूव द कर्सर पोजीशन, वी कैन एडिट द डेटा एज पर रिक्वायरमेंट। With the above example, it is clear that you can move the file pointer या file cursor, मैं cursor कह रहा हूँ, ये pointer कह रहा है, same thing, there is no difference। तो we can move the file pointer according to our requirement। Forward direction, backward direction, number of bytes from 0th location, number of bytes from end,
नंबर ऑफ बाइट फ्रॉम करंट लोकेशन, नेगेटिव वैल्यू राइट टू लेफ्ट मूव करती है, पॉजिटिव वैल्यू लेफ्ट टू राइट मूव करती है, तो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. नाउ हाउएवर वन थिंग दैट यू शुड बियर इन माइंड दैट बैकवर्ड मूवमेंट बिगनिंग ऑफ फाइल का एरर आ जाएगा अगर आपने जीरो से भी पीछे मूव करने की कोशिश की, और फॉरवर्ड मूवमेंट एंड ऑफ फाइल आ जाएगा जब आपका कर्सर एंड पोजीशन से भी आगे मूव करने की कोशिश करेगा. तो these two errors we have to handle. Basically these two errors are very helpful. इसी से हमें पता लगता है कि बिगिनिंग ऑफ फाइल और एंड ऑफ फाइल कहाँ है. ठीक है, तो ये कुछ कोड्स हैं, इनको ध्यान से देखते हैं कि क्या कोड है. चेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर आफ्टर रीडिंग फंक्शन. ठीक है, ओपन द फाइल, मार्क्स योर टेक्स्ट, प्रिंट एंड देन प्रिंट द करंट पोजीशन. क्या होगा, देखो जब हमने पूरी की पूरी फाइल ही प्रिंट कर दी रीड करके, तो कर्सर पोजीशन एंड में आ जाएगा. ठीक है, जितने करैक्टर है उसे एक एक्स्ट्रा में आ जाएगा. तो ये क्या किया, ये सारा का सारा डाटा प्रिंट कर दिया, और द पॉइंटर इज एट नाउ 75. इसका मतलब 74 बाइट्स होंगे इसके अंदर. As you can make out that the file has 74 characters including new line at the end and it is showing 75. इसका मतलब end of file कहां पर है, पूरी फाइल फिनिश होने के बाद लास्ट कैरेक्टर इज end of file and the first character is BOF, beginning of file. ठीक है, कोड स्निपेट 12, रीड द लास्ट 15 कैरेक्टर. तो लास्ट से 15 कैरेक्टर हमने कैसे रीड करने हैं. 2 is the mode from end and minus 15 is showing us in negative direction, means right to left. So it will read the data from right to left from end. Okay, print this successfully. तो ये प्रिंट कर दिया. लास्ट वाला कौन सा था, लास्ट रिकॉर्ड प्रिंट कर दिया. ठीक है, अपडेटिंग रिकॉर्ड इन द फाइल. अब अपडेट करना कैसे है, ये स्टेप्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखो. इन स्टेप्स के बाद एक एग्जांपल भी दिया है कि आप अपडेट कर कैसे सकते हो. पहले हम स्टेप्स को समझते हैं, फिर हम इन स्टेप्स को समझने के बाद उस प्रोग्राम को समझेंगे, और उस प्रोग्राम को समझने के बाद तुम वापस रिवर्स करके अपने वीडियो को इसी को दोबारा से देखोगे, स्टेप्स दोबारा से देखोगे. स्टेप समझा रहा हूं ध्यान से. ये स्टेप्स अगर समझ में नहीं आते हैं तो प्रैक्टिकल देखोगे, प्रैक्टिकल देखने के बाद दोबारा से ये स्टेप्स देखोगे कि कैसे हमने किया है. Locate the record that you want to change. ठीक है, सर्च कर लिया हमने. Then make changes in the loaded object and then go back to the position कि वो जो ऑब्जेक्ट तुमने रीड किया है वो किस लोकेशन पर है. आपका कर्सर उस लोकेशन पे जाना चाहिए. And once your cursor is at right location where you want to write the data, then what will you do? Then you will write the data at that location. ये 3 स्टेप्स हैं जिसको हमें ध्यान से समझना है. देखो, टू डिटरमाइन दैट व्हाटएवर यू वांट, उसको कैसे करना है. देखो, स्टेप 1, ओपन फाइल एज रीड मोड, देन लोकेट द रिकॉर्ड, सर्च द रिकॉर्ड, रीड द रिकॉर्ड, एंड इफ इट इज फाउंड देन आर पोजीशन. देखो ध्यान से देखो, आर पोजीशन हमने रीड करने से पहले ही, बिफोर रीड हमने कर्सर की पोजीशन नोट कर ली. उसके बाद ऑब्जेक्ट को रीड कर लिया तो कर्सर आगे मूव कर गया. अब हमने ये पोजीशन क्यों रिकॉर्ड की थी, क्योंकि हमने इस पे ओवरराइट करना है. ओवरराइट मींस वी वांट टू अपडेट समथिंग. देन यू चेंज द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट and then go R position of the cursor and then write it, make changes in the record, then write back onto the file where the location is R position. ठीक है, now place the file pointer at the where you want to store the data and write the modified record now. ठीक है, तो ये ऐसा स्टेप हमें करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इसको ध्यान से पढ़ना. now there is one example on this concept only. Example is, consider the binary file stu.dat storing student detail which you created in the previous program. Write a program to update the record of the file stu.dat.
so that those who have scored more than 81 will get additional bonus marks. तो जिसके 81 है उसके 80 मोर देन 81 सॉरी 81 के चेंज नहीं होंगे, मोर देन 81 को 2 मार्क्स बोनस मार्क्स मिलेंगे. इफ इट इज 82 देन 84 हो जाएंगे उसके मार्क्स. 2 मार्क्स विल बी एडेड. ओके. इंपोर्ट पिकल ब्लैंक डिक्शनरी फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स. fn is equal to open stu.dat. stu.dat को हमने ओपन किया किस मोड में? rb plus. r plus means reading and writing both. b means binary file. Now try. While true, it is infinite loop. r position, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. r position is equal to fn.tell. करंट पोजीशन पता लग जाएगी हमें. उसके बाद हम रीड कर रहे हैं. Load is a read function. So stu is equal to pickle.load fn. If stu marks are greater than 81, then you do changes in the record. Stu marks is equal to stu marks plus 2. 2 marks are increased. Then file.cd. अब देखो हमने कहां पर पोजीशन ले गए. ये जो हमने रिकॉर्ड की थी r पोजीशन, इसकी हेल्प से हम seek g जो हमारा ये फंक्शन है, हम सीक की हेल्प से कर्सर को आर पोजीशन पर ले जाएंगे वेयर वी वांट टू राइट द मॉडिफाइड डेटा एंड देन वी विल राइट द डेटा pickle.dump. ठीक है. तो सीक पी सीक जी तो हमारे पास सी प्लस प्लस में होते थे. अब यहां पर सिर्फ सीक फंक्शन है, एक ही फंक्शन सारे काम कर रहा है. ठीक है. फाउंड ट्रू. अब ये प्रोसेस होता रहेगा. जो जो 81 अबव मार्क्स होंगे वो सभी अपडेट हो जाएंगे. एंड देन एक्सेप्शन एरर विल डेफिनेटली कम जब एंड ऑफ फाइल पे आ जाएगा. तो फॉल्स है तो सॉरी नो मैच फाउंड, मतलब किसी के भी 81 से अबव नहीं है मार्क्स. इफ है तो क्या होगा? रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड. देन फाइल क्लोज. बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अच्छे से समझो इसको. लेट्स कंटिन्यू विद सम मोर. ये आउटपुट दिया है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली. अब देखते हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं हम. डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ फाइल stu.dat which you modified in program previous one. ठीक है ना. तो अभी हमने जो मॉडिफाई किया है उसका डिस्प्ले देखना है हमने कि क्या हमारा आउटपुट आया, ठीक चेंजेस हो गए हमारे जो हमने अपडेट किया या नहीं हुए. इंपोर्ट पिकल. stu is a empty dictionary. fn is equal to open stu.dat. इस मोड में, रीडिंग मोड में, बाइनरी फाइल. ट्राई. Print stu.dat file records are as following. While true, infinite loop. Stu is equal to pickle.load fn print stu. ये वाला काम कब तक चलता रहेगा? जब तक true statement आती रहेगी. ठीक है. infinite loop है. As soon as error will come कि end of file has occurred, then it will close the file. इसी तो ये सभी के सभी प्रिंट कर देगा 1 2 3 4. ध्यान से देखो, ये जो 85.5 है, जरूर इसके 83.5 होंगे तभी इसको 2 मार्क्स बोनस मिलेगा. यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ कोई चेंज नहीं है. सो आउट ऑफ 4 रिकॉर्ड्स 1 रिकॉर्ड मस्ट बी अपडेटेड. ठीक है. यू कैन ऑल्सो प्लेस द फाइल पॉइंटर बैकवर्ड. हाँ, ये भी कर सकते हैं, पर इस बुक में ये चीज नहीं बताई गई है. एंड वन मेथड इज सफिशिएंट. वी कैन एडिट all the things with one method only. No need to understand the second method. है भी नहीं इस बुक में. It is out of the scope of this book. Write a program to modify the name of roll number 12 as Gurnam. तो हमने क्या करना है? stu.dat में रोल नंबर 12 को सर्च करना और उसके नेम, जो ऑलरेडी जो नेम है वो गलत नेम है, स्पेलिंग गलत है, उसको हमने चेंज करके गुरनाम लिखना है. तो देखते हैं क्या लिखा. इंपोर्ट पिकल. Stu is a dictionary. Found is equal to false. fn.open. Open the file in binary mode. Read and write both. ठीक है. फिर हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या किया? हमने while स्टेटमेंट लगाई. अब देखो, पहले हम क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं. रीड करने से पहले हमने पोजीशन रिकॉर्ड की, फिर रीड किया. रीड या लोड एक ही बात है. हमने लोड किया एंड देन इफ इट इज रोल नंबर 12 नेम इज इक्वल टू गुरनाम. जो पहले जो नेम होगा, कोई भी नेम होगा, दैट विल बी ओवर रिटन बाय गुरनाम.
एंड देन एफ इन डॉट सीक कहां पर जा रहे हैं, आर पोजीशन कहां से लिया हमने, ये वाली आर पोजीशन ली है, ठीक है। आर पोजीशन पर हमारा जंप कर गया कर्सर, एंड देन यू हैव डंप मींस राइट इट इनटू द फाइल, एंड देन फाउंड ट्रू। दिस स्टेटमेंट विल वर्क टिल द एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल जैसे ही आ जाता है हमारा, तो अगर फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, मतलब रोल नंबर 12 मिला ही नहीं। इफ इट इज ट्रू देन रिकॉर्ड फाउंड एंड चेंज्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, फाइल डॉट क्लोज। अब ध्यान से देखो, ये नेम जो है गुरनाम, ये चेंज हो गया, हमने इसको डिस्प्ले किया, रिकॉर्ड में ही चेंज हो गया। पहले क्या था देख सकते हैं हम पिछले आउटपुट में, पहले आउटपुट में हमारे पास था गुनीत, गुनीत को चेंज करके क्या कर दिया, गुनीत को चेंज करके हमने कर दिया गुरनाम, ठीक है। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड ऑल these steps are given again, you can read these steps, and we have understood pickling, unpickling, reading, writing, searching, modifying from binary file। बाइनरी फाइल के सारे प्रोसेसेस हमने समझ लिए हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यू रीड दिस बुक वेरी केयरफुली, इट्स फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।